चलिए। सो हमने जो कुछ भी देखा है, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं 2 मिनट का, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। सो ऑन द डे वन, सबसे पहला दिन, I have told you what are the different kinds of applications are there inside the IT industry. So that time you come to know this, you came to know like there are types of application. There are two kinds of application: on-premise and the on-demand application. On-premise is that category of application that that requires a pre-installation, जिसको पहले install करना जरूरी होता है. And on cloud या फिर cloud application वो होता है that actually runs from the server with the help of a browser and internet. You can simply access any application, and that category of application that that doesn't requires a pre-installation. Without installing a software, even you can use that software. You can use that application. So such category of application comes under the cloud application. Then we have discussed so many drawbacks related to on-premises and the so many advantages related to on-demand. ये सारी चीजें काफी सारी डिस्कस किया हमने. If you go back and see that lecture, तो आपको ये चीजें डिटेल्स में आ जाएंगी. उसके बाद मैंने आपसे स्टार्ट करवाया कि what exactly is SaaS, what is PaaS and IaaS. These are the three different kinds of cloud services. These are the three kinds of cloud services that is being offered by the any cloud vendor. There are so many cloud vendors like Amazon, Salesforce, Microsoft, IBM, Oracle, काफी सारे हैं. But interesting was that जैसे Amazon only offers you the SaaS, and then Microsoft offers you the SaaS and PaaS also. Then IBM and Oracle and Alibaba, they purely offers you IaaS only. They purely offers you IaaS. See, but Salesforce, Salesforce, whose mic is this? Salesforce is the only cloud vendor. Salesforce is the only cloud vendor that provides you SaaS, PaaS, and IaaS. This is the beauty of Salesforce. Who's mic? किसी का mic on है, please off कर सकते हैं क्या? Who's someone mic is on? Can you please mute yourself? Yes. Rahul. Okay, Rahul, I'm sharing back you the host command. You need to maintain all this. Just give me a second. Rahul, yes. Align infotech के नाम से. I'm making you host now, and then you need to maintain all this background activities. See, so these are the three kinds of cloud services. Importantly, Salesforce is the only cloud vendor. Salesforce इकलौता है ऐसा जो आपको ये तीनों तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है. Salesforce provide you SaaS, PaaS and IaaS. SaaS, PaaS, IaaS क्या है ये देखना है तो आप वीडियो नंबर 2 जो सेकंड सेशन था हमारा, you need to go with that. आप उस सेशन पे जाएं, आपको इसकी डेफिनेशंस पूरी क्लियर हो जाएगी. इसके बाद जो सेशन था हमारा मोस्ट प्रोबेबली कल का सेशन आई थी या शायद उसके एक दिन पहले का, थोड़ा सा मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है. So मैंने आपको समझाया कि how does exactly Salesforce offer you SaaS, how exactly Salesforce offer you PaaS, and how exactly Salesforce offer you IaaS. These are the three kinds of cloud services, and Salesforce is the only cloud vendor that can provide you all three kinds of services. Now with the help of SaaS, you can give a ready-made software to someone. As a part of SaaS, Salesforce offer you the world's biggest CRM. दुनिया का सबसे बड़ा CRM जो है वो एज अ पार्ट ऑफ SaaS आपको ऑफर करता है Salesforce. As a part of PaaS, you can develop your own Salesforce customized applications. That depends on the requirement, whatever the kind of requirement is. तो उसके हिसाब से आप एक नया सॉफ्टवेयर, एक नया एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हो. फॉर दैट यू आर गोइंग टू रिक्वायर PaaS एंड IaaS. तो ये किस तरह से ये तीनों सर्विसेज मिलती हैं, इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन हुआ है और एक पूरा लेक्चर करीब करीब इसी को एक्सप्लेन करने में गया है. ठीक है. इसके बाद में हम आई थिंक yesterday we have started with the different terminologies of the CRM. What exactly is the CRM में क्या terminologies यूज होती हैं. Importantly, कल एक डिस्कशन हुआ जो बहुत जरूरी है आपको याद रखना कि what happens when a lead is converted inside the Salesforce. उससे पहले मैंने आपको ये बताया कि lead exactly होता क्या है, what exactly is the lead, and what is the importance of lead in the overall business process, what's the importance of the lead in the overall CRM process. उसके बाद में हमने फिर डिस्कशन किया कि what really happens when a lead is converted. So inside, when the lead is converted into the Salesforce, there are 3 records that are automatically generated: account, contact and opportunity. ठीक है. फिर हमने डिस्कस किया कि what exactly is the account record. Accounts में क्या होता है, contacts में क्या होता है, opportunities में क्या होता है. What are these objects? What are the details that these objects merely they store? Then एक important चीज यहाँ से और निकली बोलिए कि एक क्वेश्चन आया था रिसेंटली, कुछ लोगों को पूछा गया था कि अगर अकाउंट में if account is already having few contact details,
account is already having few contact details. Why additionally we require to store these details in the contact object? तो यहाँ पे डेटा रिडंडेंसी हो रही है. सो व्हाई डेटा इज रिडंडेंटली, डेटा इज डुप्लीकेसीज होंगी. तो ये थोड़ा सा कैसे टैकल करना है इस क्वेश्चन को और किस तरह से इसका आंसर देना, कल फिर हमने इस पर डिस्कशन किया. और फाइनल बात जो मैंने आपको कल जिस टॉपिक पे मैंने कंक्लूड किया था वो ये कि these all are the different kinds of terminologies that you must have heard in a common business process. If you are, if you were the student of BP or MBA, and during your studies, you must have learned about the campaign lead, account contact, because these are what? These are related to business. These are related to something of the business. Now, these are the objects inside the Salesforce CRM. So, कल जब हम इसको एंड कर रहे थे तो हमारा कंक्लूजन ये था कि हाउ रियलिस्टिक इज द Salesforce CRM to your business process. The kind of terminologies that you have used to describe your business process, you must have used this lead, you must have used this term called as opportunity, you must have used the term called as cases, you must have used the term called as solution, product, price book. These are what? These are the objects of the Salesforce. And how many objects are there in the Salesforce? Salesforce have, it's a very rich collection of the objects. कल हमने ये चीजों पर डिस्कशन किया. I have showed you how many objects are there inside the Salesforce. Although there are plenty of objects, there are plenty of the objects being provided by the Salesforce. लेकिन अगर वो आपके business को suit नहीं होता है, then Salesforce have given you this facility. You can definitely create your own customized object. अभी शायद मैं किसी और let me try to go and see. Okay, you can even you can create your own customized objects also. Let me try to give you that glimpse. Just a second, आपको दिखा देता हूँ because बात चल रही है तो फिर दिखा देता हूँ. Let me try to remove some of them and then let me try to add few of the custom objects ताकि मैं आपको कुछ बता पाऊँ. Okay, I'm into the sales. Let me try to log in into the line. Let me remove this solutions to another time. Now let me try to add this hiring manager. Okay, Facebook products, return orders. These are few custom objects that I can add. But that depends on the project to project. That depends on the project to project. So I have added few custom objects like list, email, returns, and these are the custom objects. तो मेरा कहने का क्या मतलब? कुल मिला के बात ये थी कि it all depends on your business. Salesforce is entirely a customized solution. अगर आपको आपके business के हिसाब से जो existing CRM ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कैंपेन, लीड, अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट वगैरह, अगर इससे आपका काम होता है तो इट्स अ वंडरफुल. अगर नहीं होता है तो Salesforce प्रोवाइड यू दिस फैसिलिटी दैट यू कैन क्रिएट योर ओन कस्टमाइज ऑब्जेक्ट्स. तो अगर आपको अपनी कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना है तो आप उसको भी क्रिएट कर सकते हो ना. तो Salesforce इस हद तक कस्टमाइजेबल है. Salesforce इस हद तक कस्टमाइजेबल है दैट Salesforce प्रोवाइड यू दैट फैसिलिटी कि आप चाहें तो एग्जिस्टिंग CRM जो एप्लीकेशंस है, एग्जिस्टिंग CRM ऑब्जेक्ट्स है, उनको यूज करें. अगर इनसे आपका काम नहीं हो रहा है तो Salesforce गिव यू दैट फैसिलिटी कि आप अपने बिजनेस के हिसाब से, अपनी टर्म के हिसाब से, अपनी टर्मिनोलॉजीज के हिसाब से नए ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो विद इन द एप्लीकेशन. तो ये सारा डिस्कशन था. दिस विल और डिस्कशन, ये सारा डिस्कशन के साथ हमने कल का लेक्चर एंड किया था. आज मैं प्रिसाइसली आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं. What are the different sort of cloud services offered by the Salesforce? देखिए Salesforce बहुत अलग अलग तरह के डोमेन में काम करता है. Salesforce का कस्टमर डेटाबेस बहुत बड़ा है. लेट मी ट्राई टू सी दैट. काफी सारे लोगों ने ज्वाइन किया है तो एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा ना, सक्सेस स्टोरीज ऑफ द Salesforce. लेट मी ट्राई टू गो विद दिस लिंक और कौन से लिंक से यहाँ पे इस लिंक पे जाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है. Okay, my voice is breaking, I know. I'm going to repeat the point. जब ये voice break होता है थोड़ा बहुत मेरे को यहाँ पे intimation मिल जाता है. So there are so many customers, there are so many types of business that use the Salesforce as the CRM provider. बहुत सारे अभी लोड हो रहा है, अभी लोड हो रहा है.
दिस टाइम मैं लास्ट टाइम जब ये दिखाया था इट वाज ऑल रिलेटेड टू इंडिया आई थिंक, बट अभी मेरे ख्याल ये वर्ल्ड वाइड दिखा रहा है मुझको। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यही मैं देखना चाहता था। सो ठीक है, अगर ये एक और वेबसाइट है, मैं साइड बाय साइड दोनों ओपन कर देता हूँ ताकि एक कंपैरेटिव थोड़ा सा आपको एक अंदाजा मिल जाए इंडिया से कितने और वर्ल्ड वाइड कितने हैं, थोड़ा सा ऐसा अंदाजा दिखाना चाहता हूँ। सो भारत पेट्रोलियम इज वन ऑफ द कस्टमर जो सेल्सफोर्स को यूज कर रहा है। आईडीएफसी इज वन ऑफ द कस्टमर। नो आईडीएफसी, अगर सेल्सफोर्स आईडीएफसी का पूरा पूरा बिजनेस सेल्सफोर्स पे रन होता है, लेट मी टेल यू। आज की डेट में फाइनेंस, बैंकिंग और इंश्योरेंस, ठीक है, तीन सेक्टर ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट सेल्सफोर्स पे आ चुके हैं। सारे बड़े बैंक्स, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी, उसके बाद में मुथूट फाइनेंस, ठीक है, मुथूट के गोल्ड्स वगैरह जितने भी हैं, ये सारे वो पूरा का पूरा सेल्सफोर्स पे है। तो व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज दे आर यूजिंग? दे आर यूजिंग, सी, दे आर यूजिंग मार्केटिंग क्लाउड, सोशल स्टूडियोज, टैबल्यू एंड फाइनेंशियल सीआरएम्स। ठीक है, कल्पा पावर्स, ठीक है, कल्पा पावर इट्स अ स्मॉल मीडियम स्केल बिजनेस। आईडीएफसी बहुत बड़ा जायंट है, तो ये क्या यूज कर रहा है? दे आर यूजिंग द सेल्स क्लाउड। ठीक है, अलग अलग लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं वो सारी चीजें मेंशन है यहाँ पे। व्हाट आर द डिफरेंट कस्टमर्स आर यूजिंग, कौन कौन से क्लाउड पे किसका बिजनेस है। भारत पेट्रोलियम इज एंटायरली यूजिंग द सर्विस क्लाउड, एंटरप्राइज क्लाउड, एनर्जीज एंड यूटिलिटीज। ठीक है, then this particular Penna Cement, I don't know which company this, service cloud, manufacturing, sales cloud, तो service cloud और sales cloud और enterprise cloud, ये अलग अलग clouds यूज कर रहे हैं। Ranosys, ये कुछ I don't know what company this is, हाँ, तो सेल्स हाईटेक एंड सर्विस सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म पे है पूरा, जिसमें से सेल्स क्लाउड ले रहा है और चैटर्स यूज कर रहा है। हाईटेक कुछ अलग है, चैटर्स जो है वो सेल्स का। एल एन टी आपने सुना होगा, ये भी यूज करता है सेल्स फोर्स का सर्विस क्लाउड, सेल्स क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड। ठीक है, इट डील्स विद द रियल एस्टेट। तो ये हो गई हमारी इंडिया की कंपनी, और ऐसी बहुत सारी, अगर आप चाहें तो ये लिस्ट जितना चाहे आप एक्सपांड करके दे सकते हो, ए से जेड तक, सक्सेस क्लाउड। ठीक है, आप चाहें तो इंडस्ट्री लेवल पे जा जाके देख सकते हो कि कौन कौन से डोमेन्स हैं जहाँ पे आज सेल्सफोर्स जा चुका है। बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो उसको, बेस्ड ऑन योर बिजनेस साइज। सेल्सफोर्स एंटायरली सपोर्ट्स ऑल स्मॉल काइंड, मिड मार्केट और एंटरप्राइज, बड़ी करीब करीब हर जगह पे आपको सेल्सफोर्स मिलेगा। तो सेल्सफोर्स की ब्यूटी यही है, सेल्सफोर्स की खास बात यही है कि आपका बिजनेस साइज कैसा भी हो, सेल्सफोर्स के पास आपके पास सोल्यूशन होता है। जैसे व्हाइट हैट देख लीजिए, अक्षय आकृति, ठीक है, अक्षय आकृति, आई थिंक ये कोई एनजीओ टाइप का दिख रहा है मुझको, तो ये भी दे आर यूजिंग द नॉन प्रॉफिट, हाँ एनजीओ ही है, 100% एनजीओ, बिकॉज दे आर यूजिंग द एनपीएसपी क्लाउड। एनपीएसपी स्टैंड्स फॉर नॉन प्रॉफिट सर्विस पैक क्लाउड। पार्डॉट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, पार्डॉट्स इज अगेन एंटायर एडमिन के आगे का पार्ट है, जहाँ पे फिर से कोडिंग नहीं लगती। ठीक है, इट्स अ वेरी स्मॉल बिजनेस दिस है। उसके बाद में दिया हुआ व्हाइट हैट के बारे में, व्हाइट हैट यूजिंग सेल्स क्लाउड एंड द सर्विस क्लाउड। एजुकेशन क्लाउड एक नया क्लाउड आया हुआ है, वो भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, इट वाज एक्सपेक्टेड, मुझे एक्सपेक्टेड था कि एजुकेशन क्लाउड यूज कर रहे हैं। तो दीज आर द फ्यू काइंड्स ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेसेस। ठीक है, ये भी देखिए सेल्सफोर्स यूज करते हैं अपने बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए। इफ यू गो फॉर द मिड मार्केट, तो मिड मार्केट साइज, मिड साइज बिजनेस में भी आपको मिलेगा सेल्सफोर्स, कुछ मिड साइज और कुछ जायंट्स भी अगर आप देखना चाहते हैं, कि कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि स्पाइस जेट, जैसे कि रेड बस, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, सोडेक्सो, उसके बाद में सेफ एक्सप्रेस, बहुत सारे, एल&टी, रियलिटी, आईडीएफसी बैंक, भारत पेट्रोलियम, पेना सीमेंट, दीज आर द सम बिग बिग जायंट्स कंपनी। और भी हो सकते हैं इसके आगे भी, अगर मैं 1 2 3 4 आगे जाता हूँ तो मुझे कुछ और क्लाइंट्स, मुझे कुछ और कस्टमर्स मिल सकते हैं। ठीक है, काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। मोटा मोटा बात ये था, कोको कोला ऑफ जर्मनी, सी एंड दिस कैबू पैसिफिक, बहुत सारी कंपनीज है। कुल मिला के बात ये बताना चाहता हूँ कि सेल्स फोर्स एक कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है आपके बिजनेस के साइज पे। अगर आप स्मॉल स्केल मीडियम बिजनेस है तब भी, आप मिड लेवल कंपनी तब भी, आप स्मॉल स्टार्टअप है तब भी, आप कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तब भी, सेल्स फोर्स के पास हर तरह की सोल्यूशन है। फिर आपका बिजनेस कोई भी डोमेन का क्यों ना हो, फिर आप किसी भी तरह की सर्विसेज क्यों ना प्रोवाइड करना चाहते हो। ठीक है, आप चाहें तो सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड, कॉमर्स, ठीक है, आप चाहें तो टैबल्यू, उसके बाद एक्सपीरियंस क्लाउड, ठीक है, एक्सपीरियंस इज योर कॉमर्स क्लाउड, फाइनेंशियल क्लाउड, इंटीग्रेशन वर्क, वॉट एवर यू वांट। ठीक है, सारी चीजें आपको सेल्सफोर्स में मिल जाएंगी। आपका इंडस्ट्री किसी भी टाइप का, आपका इंडस्ट्री ऑटोमोटिव हो, बिजनेस हो, कम्युनिकेशन रिलेटेड टू एजुकेशन हो, फाइनेंशियल हो, गवर्नमेंट हो, हेल्थ सेक्टर हो, लाइफ साइंसेस, ठीक है, इसके लिए पूरा हेल्थ क्लाउड नया बन के आया अभी अभी रिसेंटली। हेल्थ क्लाउड, एजुकेशन क्लाउड और एनपीएसपी क्लाउड, 3 नए क्लाउड आए, मैं डिस्कशन में लेने वाला हूँ। बस मैं जस्ट एक टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये बताने के लिए कि सेल्सफोर्स की ग्रेविटी कितनी है। सेल्सफोर्स आपको हर डोमेन के बिजनेस में नजर आएगा, हर डोमेन की। आप, और नहीं है तो क्रिएट होगा, नहीं है तो क्रिएट होगा। आपका बिजनेस कौन से भी डोमेन का हो,
आपके लिए एक कस्टमाइज सॉल्यूशन, एक सीआरएम सॉल्यूशन प्रोवाइडर है सेल्सफोर्स। और ये एक वजह है जिसकी वजह से सेल्सफोर्स इतना पॉपुलर है, सेल्सफोर्स के पास इतना बड़ा डेटाबेस है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज, व्हाट काइंड ऑफ क्लाउड सर्विसेज मिलती है क्लाउड से, the kind of services, the kind of cloud services provided by the Salesforce, आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आज बेसिकली हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं। सो चलिए, सबसे पहला जो सर्विस है वो है सेल्स क्लाउड। ठीक है, सेल्स सर्विस मार्केटिंग, दीज आर द 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ योर सेल्सफोर्स सीआरएम। ठीक है, वैसे तो मैं टॉपिक में सेल्सफोर्स सीआरएम दे रखा है, बट सेल्सफोर्स सीआरएम के 3 मेजर इंग्रेडिएंट्स ये हैं, उसके अलावा भी कुछ और चीजें जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और भी कुछ क्लाउड्स हैं दैट आर एक्सेप्शनली जो अलग है सीआरएम से, स्टिल वो डिस्कशन में लेने वालों में, ताकि आपको एक इंट्रोडक्शन मिल जाए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि सेल्सफोर्स में कितनी सारी चीजें हैं, कितना बड़ा है सेल्सफोर्स और कितने सारे मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, पढ़ने के लिए कितना कुछ है इसके अंदर, आप चाहें तो बहुत दूर तक आपकी सारी जिंदगी आप इसमें ट्रेवल कर सकते हो, तो ये जर्नी खत्म नहीं होगी। तो इतना बड़ा है बेसिकली सेल्सफोर्स। ठीक है, तो एसेंशियली अगर हम बात करते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम की, तो सेल्सफोर्स सीआरएम में 3 मेजर क्लाउड्स आते हैं, 3 मेजर क्लाउड्स, उसके अलावा भी हैं लेकिन 3 मेजर क्लाउड्स कौन कौन से? सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड एंड द मार्केटिंग क्लाउड्स। बिकॉज सीआरएम में 3 एक्टिविटीज बहुत जरूरी होती है। हमने कल इसके ऊपर, कल और उसके पहले एक दिन, मतलब फ्रॉम द पास्ट 2 डेज वी आर डिस्कसिंग ऑन दिस, कि सीआरएम की स्टार्ट कहां से होता है। सीआरएम शुरू होता है एडवर्टाइजमेंट से। एवरी कंपनी, how if they want to launch something in the market, if they want to capture the customers, if they want to get the customers for their consumers for their product, how to do that? The basic thing is the marketing. तो हर बिजनेस स्टार्ट कहां से होता है? मार्केटिंग से। मार्केटिंग ही वो तरीका होता है जिसके जरिए आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, जिसके लिए आप कस्टमर्स ढूंढते हैं, राइट? So whatever the activities, whatever the activities that are related to the marketing, they all are automated inside this marketing cloud. इस पर डिस्कशन लेता हूँ। What are the activities that are related to the sales? सेल्स से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है, मतलब what kind of applications will be there inside the Salesforce, सेल्स क्लाउड। अगर कोई ये पूछे तो बहुत इजी है इसको आंसर करना है। सेल्स क्लाउड इज रिलेटेड टू एंटायरली सेल्स प्रोसेस, whatever the automation that is being required. what is the automation? कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो सेल्स क्लाउड के अंदर है, जो सेल्स टीम परफॉर्म करती है, that all activities are being that our activities are being present inside the sales cloud. अब इसमें बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स आती हैं, थोड़ा बहुत। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, जस्ट टू क्रॉस वेरीफाई, जस्ट टू क्रॉस वेरीफाई, जैसे आप अपने रेज्यूमे में आपको लिखना पड़ता है ये चीज। होता ऐसा है कि जब आपका एडमिन कंप्लीट हो जाता है, एडमिन मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है, तो मैं आपसे एक डिस्कशन लेता हूँ कि देखिए, आप में से जितने लोग एडमिन के बाद अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब अगर आप डेवलपमेंट से पहले या डेवलपमेंट के साइमल्टेनियसली अगर आप चाहते हो कि मैं एडमिन के बेसिस में अगर कोई अपॉर्चुनिटी तो उसको ग्रैब करूं, तो मैं कहता हूं कि ठीक है, आप अपने रेज्यूमे मुझे फॉरवर्ड करिए, फिर आपके रेज्यूमे को मैं रीडिजाइन करता हूँ, बिकॉज मुझे सिर्फ आपकी बेसिक डिटेल्स चाहिए। उसके लिए आपका जो भी आपका एक रॉ रेज्यूमे होगा, वो आप रॉ कॉपी ऑफ रेज्यूमे मुझे सबमिट करिए। आई एक्चुअली रीफॉर्म इट एंड आई रीडिजाइन इट अकॉर्डिंग टू द सेल्सफोर्स। तब मैं लिखता हूँ उसमें कि वी हैव वर्कड ऑन सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड एंड मार्केटिंग क्लाउड। ठीक है, तो आप में से जितने के भी रेज्यूमे बनाऊंगा मैं, सब में ये टर्म लिखूंगा मैं कि वी हैव वर्क ऑन द सेल्स, सर्विस एंड मार्केटिंग। आई मीन जिसका भी मैं एक्सपीरियंस पुटअप कर रहा हूँ, ठीक है, जिसका भी। और यूजुअली हम यहाँ पे फ्रेशर्स का भी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस प्रोवाइड करके देते हैं। ऐसा मेरा अलाइन इन्फोटेक और एलन के साथ में एक पहले एग्रीमेंट हुआ था कि अगर कोई फ्रेशर्स है तो उनके लिए आपको एक internship sort of experience बनाना पड़ेगा. So we usually give some sort of experience on every resume. That is why what we want your resume to get pick होना चाहिए. And so we kept some sort of experience on that. तो based on that आपको फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है कि what kind of clouds you have worked. तो always you need to say we have worked on the sales cloud, service cloud and the marketing cloud. Because अभी जिस तरह की ट्रेनिंग मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसमें हम जो एप्लीकेशन हम डिजाइन करने वाले हैं, जो प्रोडक्ट हम डिजाइन करने वाले हैं, that entire CRM product is going to be based on these 3 clouds. आप अभी जो कुछ भी सीखने वाले हो ना, वो इसमें से है। हाँ, इसके अलावा आपको बाकी सबकी जानकारी भी मैं दूंगा, ताकि अगर आपसे सवाल किए जाए तो आप जवाब दे सको, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम you are going to work on these objects, the objects that are related to sales, service and marketing. And that is why अगर आप बोल रहे हो मेरे भाई कि I have worked on sales, service and marketing, तो you must be aware of the applications and the few objects. सारी तो याद रखना किसी के बस की बात, वो पीरियोडिक टेबल याद करने जैसी बात है।
वो या लॉग टेबल याद करने जैसी बात है। तो सेल्सफोर्स में ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, और जिस तरह से एक लॉग की सारी वैल्यूज आप याद नहीं कर सकते ना, वैसे मेरे ख्याल इसको भी याद नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बस मेरा ख्याल है, हो सकता है कोई मुझे गलत साबित कर दे, बहुत अच्छी बात है। सो मैं क्या कह रहा हूँ कि कुछ ऑब्जेक्ट्स और कुछ एप्लीकेशंस याद करना जरूरी है, बिकॉज आपने अपने रेज्यूमे में पुट किया है कि आई हैव वर्कड ऑन द सेल्स सर्विस इन द मार्केटिंग। द फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या है, और फिर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सो एप्लीकेशन कोई बड़ी बात नहीं है समझना। सेल्स क्लाउड का एंटायर एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन द सेल्स, whatever the activities, whatever the kind of automations that are required to perform the sales related activities. And that is thing, that facilities are being provided inside the sales cloud. Like the the things related to lead generation, lead filtration, identifying the quality lead, whatever. The things अभी ऑब्जेक्ट देख लो, ऑब्जेक्ट्स आपको समझ में आएगा, अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, sales also deals with the orders, sales also, sales team, sales team deals with all these things. Sales is the team who actually deals with the contract. Sales is the team that actually quote to whom, quote to any product. He actually, the persons from the sales team, he know what is the quotation for this product should be the given, what's the price book. They plan for some sort of task and events. They built up some sort of analytics like at reports and the dashboards. रिपोर्टिंग तो पता होगा, डैशबोर्ड नहीं पता तो ठीक है, रिपोर्ट तो हर कोई जानता है। रिपोर्ट तो हमें बचपन से आज तक मिली जा रही है ना, हर क्लास में जब हम पास होते हैं हमें रिपोर्ट मिलती है। तो रिपोर्ट इज समथिंग, आप जानते हैं कि रिपोर्ट्स का मतलब क्या होता है। रिपोर्ट इज दैट कैलकुलेशन पार्ट के, समथिंग रिलेटेड टू दी कितना लीड कन्वर्ट हुआ, समथिंग रिलेटेड टू कितना अपॉर्चुनिटी जनरेट हुआ, समथिंग रिलेटेड टू कितना काम हुआ है ना, रिपोर्ट्स आर दैट। तो ये हम एनालिटिक्स एक पार्ट हम पढ़ेंगे सेल्सफोर्स में। तो एनालिटिक्स में दो चीजें पढ़ेंगे, रिपोर्टिंग क्या होती है और डैशबोर्ड क्या होता है। तो जिसके जरिए हम बेसिकली कुछ सबमिट करते हैं, रिपोर्ट्स में हम टेबुलर फॉर्म में सबमिट करते हैं, डैशबोर्ड में हम ग्राफिकल कुछ पाई चार्ट, कुछ डोनट चार्ट, कुछ फेनल चार्ट्स, इनकी मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दीज आर सम सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशनल टूल्स, ये भी आप पढ़ने वाले, और ये भी एक हिस्सा है आपके सेल्स का। तो इस तरह से ना कुछ चीजें याद रखो when you are saying this कि I have worked on this sales service in the marketing, फिर आपको थोड़ी बातें पता होनी चाहिए इसके बारे में। और वैसे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बॉस, अभी जस्ट स्टार्टिंग की बात है इसलिए शायद नया लग रहा है, लेकिन व्हेन यू कम इनटू दिस और व्हेन यू स्टार्ट, जब आप अपना और डेवलप कर लोगे और मैं आपको प्रोजेक्ट पे लेके जाऊंगा, व्हेन वी स्टार्ट डेवलपिंग वन एप्लीकेशन, वन एचआर मैनेजमेंट एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू डेवलप फॉर अवर क्लाइंट अलाइन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, है ना, ये हमारा क्लाइंट है, उसके लिए हम काम करेंगे। वी आर गोइंग टू डेवलप वन एचआर एप्लीकेशन, तो उस वक्त ये सारे क्लाउड्स को यूज करेंगे। तो तब जाने के बाद अगर आपसे कोई पूछे तो शायद ये आपको बड़ी चीज ना लगे, हो सकता है इस वक्त आपको लग रहा हो कि अरे ये क्या चीज है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। समवन माइक इज ऑन, सुशांत, या सो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द सेल्स क्लाउड? द एप्लीकेशंस प्योरली रिलेटेड टू द सेल्स इटसेल्फ। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ सर्विस क्लाउड? माय एप्लीकेशन देयर, सर्विस क्लाउड मतलब सर्विस रिलेटेड। हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। When the Salesforce was initially started, in the beginning, 1999, Salesforce was started. From the started itself, from the starting itself, it was based on the cloud only. शुरुआत से ही क्लाउड पर है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि Salesforce जो है वो पहले ऑन प्रीमाइस था बाद में ऑन क्लाउड आया, ऐसा कभी नहीं हुआ। From the beginning itself, Salesforce क्लाउड में ही है, ठीक है। And Salesforce was started with these two clouds only, Sales Cloud and the Service Cloud. मार्केटिंग क्लाउड बाद में ऐड हुआ, कैसे ऐड हुआ वो स्टोरी बताता हूँ मैं। अब सेल्सफोर्स खुद एग्जिस्टेंस में कैसे आया है ना, ये भी बड़ी एक बहुत ही अच्छी कहानी है। आज भी सेल्सफोर्स का जो सीईओ है मार्क बेनियोफ, दिस अ पर्सन हु हैज हु एक्चुअली कम अप विद दिस आइडिया। मार्क बेनियोफ एक पर्सन है, एक शख्स है, जो आज सीईओ है इस कंपनी के, ठीक है, इज द फाउंडर मेंबर ऑफ दिस कंपनी। ये पहले ओरेकल के एक एम्प्लॉय थे, ही वर्क्स फॉर द ओरेकल, और ओरेकल पे काफी सीनियर पोजीशंस पे थे, और इन्होंने काफी रिसर्च करी, लिटरली सी, मतलब नेसेसिटी, हम बोलते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ एवरी इन्वेंशन। आपने सुना होगा, जरूरतें ही होती है जिसकी बदौलत कुछ ना कुछ नया बनता है, तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ एवरी इन्वेंशन। तो इन्होंने एक अपनी रिसर्च करी, काफी साल रिसर्च करने के बाद इनको ये पता चला, और उन्होंने शेयर किया ओरेकल की मैनेजमेंट के साथ। सी, द प्रोडक्ट्स ऑफ द ओरेकल दे आर वेरी एक्सपेंसिव, इवन दो ना आज भी बड़े एक्सपेंसिव हैं। ओरेकल 10 और ओरेकल 11 आए, खरीदना सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। सो दे सजेस्टेड इवन फॉर दैट टाइम आल्सो, ही सजेस्टेड, मार्क बेनियोफ ने सजेस्ट किया ओरेकल को कि उनकी जो भी मैनेजमेंट की, देखिए ये हमारे प्रोडक्ट्स काफी महंगे हैं, और महंगे होने की वजह से इसकी पहुंच सब तक नहीं है। आई मीन हमारी पहुंच कहां तक है, कौन लोग हैं जो ओरेकल यूज करते हैं? दीज आर द वेरी फ्यू बिग जायंट्स कंपनी,
लेकिन हमारी पहुंच मिड लेवल कंपनी तक नहीं है। हम स्टार्टअप के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, वो तो हम मतलब कि स्टार्टअप के पास वैसे ही इन्वेस्टमेंट का बड़ा इशू रहता है। तो आज वो खरीदें ओरेकल को तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो हमारा जो कस्टमर का जो डेटाबेस है ना वो काफी छोटा है। कस्टमर्स तक, हमारे कस्टमर्स में काफी बड़े ही नाम है, छोटे नाम नहीं है। तो अगर हम अपनी सर्विसेज को रेंटल बेसिस पे देना शुरू करें, है ना, इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट ऑन प्रीमाइस लाइसेंस, है ना, अगर वी प्रोवाइड द रेंटल लाइसेंस, इफ वी प्रोवाइड ऑन, है ना, सर्विसेज, इफ यू ऑफर देम, कि अगर हम उसको ऐसे रेंट पे देना शुरू करें, जो क्लाउड का फंडा था, तो क्लाउड उस वक्त नया नया आया था, और मार्क बेनियोफ चाहते थे कि ओरेकल क्लाउड पे आ जाए, ओरेकल क्लाउड पे आ जाए, ये वो चाहते थे। तो लोगों ने उस चीज को समझा नहीं उस वक्त, और उन्होंने इनकार कर दिया इस चीज से। ओरेकल ने कहा कि नो नो नो, वी हैव आवर ओन लेगेसी, वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस, हम नहीं करेंगे ये चीजें, वी नेवर, हम ऑन प्रीमाइस पे ही रहेंगे। बट देखिए, एक कोई व्यक्ति होता है जिसका विजन बहुत दूर तक होता है, जिसको एक ऊपर वाले ने एक ताकत दी रहती है कि जो काफी दूर तक देख सकता है। तो उसने आइडेंटिफाई कर लिया था कि क्लाउड बहुत लंबी चीज है, क्लाउड बहुत दूर तक जाएगा, और एक ऐसा वक्त आएगा जब क्लाउड ही बचेगा। तो जब उन्होंने देख लिया और उन्होंने काफी समझाने की कोशिश की है, ओरेकल के लोग नहीं समझे इस चीज को, तो उन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन किया। इसमें कहीं पर भी ईगो नहीं है, ठीक है, ईगो नहीं है कि मेरी बात नहीं मानी तो मैंने रिजाइन कर दिया, नहीं नहीं, वो अपॉर्चुनिस्ट थे, उनको पता था कि क्या होगा क्लाउड का आगे। तो भाई उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और अपनी कंपनी खुद की शुरू करी 1999 में, जिसका नाम था ड्रीम फोर्स, और फिर 3 साल बाद उसका नाम बदल गया सेल्स फोर्स। और सेल्स फोर्स ना शुरू से ही क्लाउड पे, शुरू से, फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ, पहले से ही सेल्स फोर्स। एक आप देखो, इसकी हिस्ट्री बहुत प्यारी हिस्ट्री है, आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक कमरे का फ्लैट था, 2 कमरे का फ्लैट हुआ करता था लॉस एंजलिस में, वहां से शुरू हुआ सेल्स फोर्स। 3 फ्रेंड्स थे, मार्क बेनियोफ एक और 2 व्यक्ति और थे, जो नाम याद नहीं आ रहा। कहाँ से कहाँ पहुंचा है सेल्सफोर्स, और कितने सालों में कहाँ से कहाँ तक खड़ा हो गया। आप थोड़ा सा इसके बारे में देखना, आपको बड़ा मजा आएगा, आपको लगेगा मैं कोई मूवी देख रहा हूँ। तो व्हेन द सेल्सफोर्स वाज इनिशियली स्टार्टेड, तो सेल्सफोर्स स्टार्ट हुआ था सिर्फ 2 क्लाउड के साथ, सेल्स और सर्विस क्लाउड। बाद में धीरे 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 सेल्सफोर्स बहुत एक्सपांड हो गया, और कंटिन्यूसली एक्सपांड हो रहा है, कंटिन्यूसली क्लाउड्स ऐड हो रहे हैं। क्लाउड ऐड होने का मतलब सर्विसेज ऐड हो रही है, ठीक है, कंटिन्यूसली हर साल, हर 2 साल में कुछ नया क्लाउड आ जाता है, ठीक है। So initially it was started with the sales cloud and the service cloud. अब service cloud ना बहुत बड़ा है Salesforce का। तो वैसे तो service cloud के applications की मैं बात करूँ। Hello. I am not audible. Am I not audible, guys? Please tell me. Please someone acknowledge me. मैं audible हूँ या नहीं? Can anyone please acknowledge me this? Okay. I was disconnected due to my internet. Yeah, please share me the host command once again so that I can share my screen. Thank you. Okay. Go back to this, and there is Rahul. So Rahul, once again, I have make you the host. Fine. So initially, when the Salesforce was started with only 2 kinds of services: Sales Cloud and the Service Cloud. अब Service Cloud ना बहुत बड़ा है Salesforce का, और even आज भी इसमें चीजें ऐड हो रही है, ठीक है। सर्विस क्लाउड सबसे बड़ा क्लाउड है, बाकी सारे क्लाउड्स में से सर्विस क्लाउड सबसे बड़ा क्लाउड है। वैसे अगर आपको याद हो, परसों के डिस्कशन में जब मैं आपको CRM एक्सप्लेन कर रहा था, तो एक ऐसी जगह आई थी जहां मैंने कहा था, देखिए, जितना इंपॉर्टेंट होता है किसी बिजनेस के लिए नए कस्टमर्स को पाना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को होल्ड करना। तो जितना इंपॉर्टेंट मार्केटिंग है, उतना ही इंपॉर्टेंट है सर्विस। अगर आप एक एंड से कस्टमर को ला तो रहे हो, वो आपके प्रोडक्ट खरीद भी रहा है, लेकिन उसके बाद आप उन पर ध्यान देना छोड़ दे रहे हो ना, आप तो आपका एक बहुत बैड इंप्रेशन क्रिएट होगा। और वो कस्टमर तो आपके हाथ से जाएगा, वो अपने रिश्तेदारों को मना करेगा, अपने दोस्तों को मना करेगा कि भाई इसका प्रोडक्ट मत ले, ये किसी भी तरह की सर्विस को। एंड दैट इज प्रोवाइडिंग सर्विस इज एसेंशियली इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस। जितना इंपॉर्टेंट आपके, अगर आप अच्छी सर्विस देते हो ना, तो आपके एडवर्टाइजमेंट के खर्चे भी कम होते हैं। तो जब क्लाइंट को लेके आता है तो उसको एडवर्टाइज नहीं करना पड़ता, राइट, उस पर फिर से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। सो सर्विस क्लाउड में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। CRM में सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस क्लाउड को माना जाता है।
तो आइए इसमें कौन कौन सी चीजें होती है वो देख लेते हैं। सर्विस क्लाउड में सबसे पहले होता है द थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू सर्विस, ऑफ कोर्स यू नो एज द नेम सजेस्ट, जैसा हम लिखते हैं ना थ्योरी में हम लिखते हैं एज द नेम सजेस्ट, एज द नेम सजेस्ट। सेल्स क्लाउड इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू सेल्स। सर्विस क्लाउड इंक्लूड्स द थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू द सर्विसेज, ऑब्वियसली मतलब द थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड द एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म पोस्ट परचेस एक्टिविटी व्हेन द क्लाइंट व्हेन द कंज्यूमर हैज परचेस्ड your product and after going to the home if he found some difficulties तो तब उसके बाद जो activities provide करना, that are the things that comes in the post purchase activities, जैसे कि आपकी वारंटीज, आपकी गारंटीज वगैरह जो भी होता है। then there is a term called as service level agreement, SLA का मिनी फॉर्म अपना वही होता है, वारंटी और गारंटी, लेकिन SLA इज अ ब्रॉड टर्म। यूजुअली SLA हम बोलते हैं जब कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बीच में अगर कोई टाई अप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी गिव विद दिस कि मान के चलिए कि यू आर अ प्रोडक्शन, यू आर समथिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपका। फॉर एग्जांपल यू आर माय क्लाइंट और आपका किसी तरह का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपके पास, ठीक है, और जिसमें आपको कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ ब्रेक डाउन इन बिटवीन। अगर ऐसा कुछ होता है तो हर घंटे आपको 1 लाख रुपए का नुकसान होता है। लेट्स हैव दिस एज एन एग्जांपल। और मैंने आपको किसी तरह का जनरेटर प्रोवाइड कर रखा है, मतलब मैं एक जनरेटर वाला हूं और मैंने आपको जनरेटर प्रोवाइड कर रखा है। सो एट द टाइम ऑफ अवर इनिशियल डिस्कशन आपने तभी मुझसे डिस्कस किया, देखो भाई आपका जनरेटर तो मैं ले लूंगा, ठीक है, आपका जनरेटर 20 लाख का मैं ले लेता हूँ। आप SLA साइन करने बोल रहे हो, आपके पास में 3 तरह के SLAs हैं, गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर। सिल्वर SLA में आप प्रॉमिस करते हो कि मैं आपको विद इन एक हफ्ते के अंदर आपका प्रॉब्लम, आई रिक्वेस्ट 7 days फॉर दिस। अगर कोई भी इशू आता है तो 7 दिन लगेंगे, मेरे पास इतना समय नहीं है, ठीक है, मेरा प्रोडक्शन को बहुत बड़ा नुकसान हो। प्लैटिनम में आप प्रॉमिस करते हो कि विद इन 5 days वी आर गोइंग टू सॉल्व योर ऑल द थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू योर, है ना, कोई भी प्रॉब्लम आए मैं 5 दिन में करूंगा। मुझे ये भी नहीं चाहिए। इन द गोल्ड SLA व्हाट यू आर प्रॉमिसिंग कि विद इन 12 आवर्स यू आर गोइंग टू प्रोवाइड मी, जो भी ब्रेकडाउन हो उसके सबके एवज में आपने कोई करो। मैं ये वाला SLA आपके साथ साइन करता हूँ। अगर इस SLA की एनुअल कीमत 2 लाख है, मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं साइन तो गोल्ड ही करूंगा। और आप अब लायबल हो जाते, मतलब आपने मेरे साथ ये SLA साइन कर रखा, तो अब मैं लायबल हूँ विद इन 12 आवर्स आपको प्रोवाइड करने को। क्योंकि अगर 12 आवर्स के बाद अगर मैं आपको सर्विस नहीं दे पाया, जनरेटर ऑन करके नहीं दे पाया, तो अब उस एक एक घंटे में आपका जितना भी नुकसान हो रहा है ना, 1-1 लाख रुपए, वो मैं दूंगा। And that is what the SLA. So SLA is a very rigid document. SLA is a very rigid document, one strict document. It all depends कि आपने किस तरह का SLA साइन कर रखा है अपने क्लाइंट के साथ, ठीक है। तो ये सब भी कहाँ मेंटेन होता है, these are the objects of service cloud। SLAs जो है ना, these are the features of the service cloud। उसके अलावा बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स और यहाँ पे, जैसे कि अकाउंट, contact, you will going to find few of the objects that are common between sales, service and the marketing, you know, few are the common। Yes, there are few objects that are common between sales, service and marketing. Then there are the few objects that are exceptionally, you know, individual, अलग अलग हैं। तो ऐसी बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगा आगे चल के, व्हेन वी गो इनटू सेल्स, सर्विस एंड मार्केटिंग। तब हम आगे चल के इसको अच्छे से देखने वाले। लेट मी ट्राई टू आई कैन सी कुछ दिखा सकता हूँ क्या मैं आपको, व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, गॉट इट। Now let me try to go and see what I can show you. I'm into all types. Let me go with the sales. You know, if I go with the sales cloud, this is sales cloud. These many are the number of objects. These many are the number of objects of the sales cloud. कैसे ढूंढना आपको सब पता चलने वाला है। ये सब नाविगेशन जो भी मैं दिखा रहा हूँ, अभी क्या टॉपिक निकला है तो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। सर्विस क्लाउड में जाते भाई साहब, इतनी सारी ऑब्जेक्ट्स हैं सर्विस क्लाउड में। If you go to the marketing cloud, these many are the objects of the market. Some of them are common, some of them are different. You know, तो आपको ये सब निकालना सीखना है। ये सब आप लिखेंगे, आप याद भी करेंगे। ये सब चीजें आप सीखने वाले हो, धीरे 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 करके आप सब कुछ सीखने वाले हो। इसको कैसे ढूंढना, ये सब मैं चीजें सिखाने वाला हूँ। सो प्लीज डोंट वरी। अभी कैसा मुझे टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है, तो मैं थ्योरी को प्रैक्टिकल से रिलेट करने की जितना हो सके कोशिश करता हूँ। तो सर्विस क्लाउड जो है वो काफी बड़ा है। हालांकि ये सारी चीजें आप देख रहे हो, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज ऑब्जेक्ट्स, यू नो, apart from these objects, Salesforce also offer you few more additional features in the Sales Cloud। बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि सबसे पहले नॉलेज बेस या फिर कंटेंट। अब ये क्या होता है, चलिए एक एक शुरू करते हैं। अगर आप इसको लिखते चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, बिकॉज दीज आर द थिंग जो इसके बाद डिस्कस नहीं हो पाई, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसके बाद शायद डिस्कस ना हो, तो बेटर है कि आप इसको लिख लें।
what is a knowledge base या what is a content inside the Salesforce. This could be asked in the admin 201 certification में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि what is a knowledge base या what is a content inside the Salesforce. See, इसका एग्जांपल मैं इस तरह से देना चाहूंगा कि अगर आप किसी गाड़ी के शोरूम में जाते हो, ठीक है, या किसी ऐसे शोरूम में जाते हो जहाँ पे कुछ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह मिलता है, फॉर एग्जांपल टीवी, वॉशिंग मशीन, कुछ भी. सो एवरी प्रोडक्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ फीचर्स, है ना, कुछ फीचर्स होते हैं जिसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट आपके हाथ में दिया जाता है. ये तो हो गया फिजिकल. अगर आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हो, आप ऑनलाइन कोई मोबाइल फोन देख रहे हो, उसका स्पेसिफिकेशन दिखाने के लिए मे बी कोई वेब पेज हो सकता है, मे बी कोई पीडीएफ फाइल हो सकती है, कोई एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, कोई वर्ड फाइल हो सकती है, कोई पीपीटी हो सकती है जिसके थ्रू डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है. तो किसी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस, किसी प्रोडक्ट के फीचर्स को, है ना, अगर हमें डिस्प्ले करना है तो वी सर्टेनली रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट. दैट डॉक्यूमेंट कुड बी योर एचटीएमएल. भाई वो डॉक्यूमेंट आपका एचटीएमएल वेब पेज हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट आपका पीडीएफ के फॉर्म में हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट आपका एक्सेल के फॉर्म में हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट आपका वर्ड, पावर पॉइंट, जो भी फॉर्म आपको पता हो, इस फॉर्म में हो सकता है. तो ऐसी कोई भी चीज रिलेटेड टू एनी प्रोडक्ट अगर आपको स्टोर करनी है, चलो ऐसा कुछ नहीं, तो फिर अगर आपने जो भी वारंटीज और गारंटी के पेपर हैं वो हो सकते हैं, आपने जो काइंड ऑफ एसएलएस बना रखे हैं वो हो सकते हैं. तो है ना, प्रोडक्ट से रिलेटेड ना बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन हमको एक प्रोडक्ट के लिए मेंटेन करना पड़ता है. तो अगर हमें सेल्सफोर्स में ये चीजें रखनी है तो कहाँ रखेंगे? सो देयर इज वन सेपरेट ऑब्जेक्ट फॉर ऑल दिस. देयर इज एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज कंटेंट, और अब उसका नाम बदल के नॉलेज बेस हो गया. पहले इनिशियली इट वाज कंटेंट, लेकिन अब जो रिलीजेस आई हैं आपके स्प्रिंग 19 के बाद से उसका नाम जो है वो बदल के नॉलेज बेस हो गया है. कंटेंट नहीं रहा, उसका नाम नॉलेज बेस हो गया है. ठीक है. तो knowledge base is that object which stores the additional documents whatever so required to maybe to demonstrate that product, maybe to to store some things related to the SLA, something related to the post purchase activity, जो कुछ भी वो वारंटी के डॉक्यूमेंट्स, वो गारंटी कार्ड्स वगैरह वगैरह, चाहे जो भी. तो इस तरह की जो मैं बातें कर रहा हूँ कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको स्टोर करना है तो कहाँ स्टोर करोगे? सेल्सफोर्स में. तो इन द सेल्सफोर्स देयर इज वन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज नॉलेज बेस. ये इंपॉर्टेंट है नॉलेज बेस का. ठीक है. दूसरा, लाइव एजेंट्स या वर्चुअल एजेंट्स या फिर ओमनी चैनल. आइए, ये 3 डिस्कशंस ले रहा हूं मैं, तीनों को इंट्रोड्यूस करूंगा, जिसमें से आपको आज की असाइनमेंट है, यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली इज द ओमनी चैनल, because this is something which is most repeatedly asked in the interview. What is omni channel in the Salesforce? I'm going to introduce you this. मैं आपको introduce करता हूँ. Let me try to open it. One diagram. I have one diagram for this also. बस कहाँ है मुझे ढूंढना पड़ेगा. चलो ठीक है, मैं बताता हूँ. बट व्हाट इज ओमनी चैनल? दिस वन इज फॉर योर असाइनमेंट. ये आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं, और इसके बारे में हमारा थोड़ा सा मैं अभी इंट्रोड्यूस करूंगा, और बाकी सारा जो एक्चुअल डिस्क्रिप्शन है वो बहुत बाद में होने वाला है, लेकिन तब तक आप इसको निकाल चुके होंगे. ओके, सी, यू मस्ट हैव सीन द वेबसाइट जहाँ पे लाइव एजेंट्स के साथ आप चैट करते हो, है ना. अगर आप किसी केस को या फिर किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, they provide you this facility. You can chat something, you can initiate some sort of मैसेजेस वगैरह आप बात करते हो विद द लाइव एजेंट्स. तो अगर आप ऐसा कोई सीआरएम डिजाइन कर रहे हो जहाँ पे आपको लाइव एजेंट्स ये वाला फंक्शनैलिटी ऑटोमेट करना है, तो ये आप कैसे करोगे? तो वी हैव दिस लाइव एजेंट्स ऑब्जेक्ट्स, वी हैव दिस फैसिलिटी इन द सर्विस क्लाउड वेयर वी कैन इंटीग्रेट लाइव एजेंट्स इन द एप्लीकेशंस. ये हो गया लाइव एजेंट्स के बारे में. ठीक है. तो इसके लिए फिर आपको WSDL वगैरह लॉगिन करना पड़ता है, मतलब जो टोल फ्री नंबर्स होते हैं उसको लेके ये एक पूरा मॉड्यूल है. हाउ टू इंटीग्रेट द लाइव एजेंट्स विद द एप्लीकेशन. ठीक है. नाउ दिस इज अ फीचर ऑफ सर्विस क्लाउड. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ फीचर ऑफ सर्विस क्लाउड. मैंने कहा ना सर्विस क्लाउड बहुत बड़ा है, डिपेंड करता है कि आप किस प्रोजेक्ट पे कितना काम करने को मिले. इवन यू कैन इंटीग्रेट द वर्चुअल एजेंट, जो चैट बोर्ड्स होते हैं जहां पर कुछ एक डेटाबेस होता है बैकएंड में, एंड व्हेनेवर यू पुट अप सम सॉर्ट ऑफ क्वेरी, तो वो क्वेरी को ना फिल्टर करता है. क्वेरी के हिसाब से आपने क्या पूछा है, कौन से कीवर्ड्स आपने यूज करे हैं, वो कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली अपने डेटाबेस में से सर्च करके कुछ रैंडम आंसर्स आपको निकाल के देता है. एंड दे ट्राई टू फिल्टर इट आउट कि आपकी क्वेरी एग्जैक्टली है किस बारे में. हो सकता है इनिशियल स्टेजेस में आपको वर्चुअल एजेंट चाहिए,
ताकि आपकी फिल्टर जो आपकी क्वेरी है जो फिल्टर आउट हो जाए, फिल्टर आउट होते होते एक पॉइंट पे आप पहुंच जाओ और वहां से फिर आगे बढ़ने के लाइव एजेंट। आपने भी सुना होगा ना, प्रेस 1 फॉर दिस, 2 फॉर दैट, एंड आखिरी में प्रेस 9 टू गेट कनेक्टेड विद द एजेंट्स, वो आखिरी में आता है। तो मे भी इस तरह का कोई मॉड्यूल आप डिजाइन करना चाहते हो ना, इफ द क्लाइंट रिक्वायर दिस काइंड ऑफ मॉड्यूल, तो उसमें क्या करना, तो फिर इसको कैसे करना, तो ये दीज आर द फीचर्स व्हिच आर अवेलेबल इन द सर्विस क्लाउड। नाउ लेट मी टेल यू दिस रिगार्डिंग द ओमनी चैनल। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन इसके बारे में थ्योरी आपको निकालना है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू का। ये मैं हालांकि अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ जब मैं इस टॉपिक पे आता हूँ, तो कोशिश करके थोड़ा सा समझने को इसके बारे में कोशिश करिए। तो थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा डिटेल्ड है, लेकिन क्या है ओमनी चैनल उसको समझाने के लिए ये मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मैं आपको समझा पाऊँ विद द हेल्प ऑफ दिस। अरे ये मूव नहीं हो रहा, चलो ठीक है मैं नया ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। So, see, there's one company called as Dell. Dell is one company जो कि मैन्युफैक्चरिंग में है, प्रिसाइसली मैन्युफैक्चर करती है लैपटॉप्स को। और ये बहुत बड़े कस्टमर्स है डेटाबेस के, बहुत बड़ा डेटाबेस सेट है, काफी सारे कस्टमर है, थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स दोज हु हैव परचेज दिस लैपटॉप, ठीक है। सो डेल कम अप विद दिस न्यू लैपटॉप, और इस लैपटॉप को काफी सारे लोगों ने परचेज कर रखा है। दिस इज व्हाट, दिस इज द कस्टमर सेट, ये कस्टमर सेट है। अब इसमें से कोई एक व्यक्ति है जिसको जो ये लैपटॉप उन्होंने परचेस किया था उसमें कुछ तरह की खामियां, कुछ तरह की परेशानी आ रही है इसमें, इज एक्चुअली फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी इन दैट प्रोडक्ट, सो whom he is going to contact। सो एक टोल फ्री नंबर है डेल की तरफ से कि इफ यू फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट है ना, इफ यू फाउंड एनीथिंग, अगर आपको कुछ कंप्लेंट्स है तो आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करें। तो द पर्सन, दैट पर्सन, ही इज द पर्सन हु हैज, ये है वो पर्सन जिसको किसी तरह की दिक्कतें आई है। सो नाउ व्हाट ही हैज डन, नॉट व्हाट ही हैज डन, ही हैज रेज्ड अ कॉल, ही हैज रेज्ड अ कॉल। तो उसने कॉल किया मतलब ही हैज जनरेटेड अ केस। नाउ दिस सॉर्ट ऑफ कंप्लेंट्स, ये जो कंप्लेंट्स जनरेट हो रही हैं, दिस सॉर्ट ऑफ कंप्लेंट्स जो है वो केसेस बोली जाती है। कॉल किसको किया, कॉल किया डेल कस्टमर केयर को। देयर आर सो मेनी एग्जीक्यूटिव्स, देयर आर सो मेनी सर्विस एग्जीक्यूटिव्स दैट आर सिटिंग इनसाइड दिस। तो अभी इसमें से सबसे पहले यहाँ पर ओमनी चैनल का सबसे पहला काम यहाँ पर आता है, आपका ओमनी चैनल का पहला काम क्या भाई, कॉल फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा है। ऑल्दो देयर आर 5,000 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स दैट आर सिटिंग इनसाइड दिस पूल, लेकिन इसमें से कौन सा फ्री है कौन सा नहीं है, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू ये ऑटोमेशन हो रहा है कि ये कॉल किसको जाना चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन द ओमनी चैनल। ओमनी चैनल इज दैट काइंड ऑफ ऑटोमेशन टूल जो एक तो ये काम करता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे काम और भी हैं ओमनी चैनल के। इसके बाद क्या, चलो अब ये हुआ कि भाई ओमनी चैनल के थ्रू आपका कॉल कनेक्ट हो गया, किसी पर्टिकुलर एक पर्सन को आप उससे बात कर रहे हैं, and that particular person is trying to understand what your problem is all about, क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको। तो उसने फाइंड आउट किया और अकॉर्डिंग टू दैट ही फाइंड आउट कि नहीं ये प्रॉब्लम कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि इसके लिए हमें एक अपने सर्विस एग्जीक्यूटिव को आपके एंड पे भेजना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड ऑन द फोन, नहीं हो सकता। सो व्हाट ही टेल्ड अस कि ठीक है बॉस, मैंने आपका केस रजिस्टर कर दिया है, and as an acknowledgement you must receive one email या फिर आपको एक SMS भी आ जाएगा with this case number and all details whatever we have registered for this particular case inside our database, so you are going to get the acknowledgement of that also. So don't worry, we one person from our service team is going to be allotted this case and he is going to call you, maybe he is going to in touch with you। तो ऐसा कुछ बातें चलेगी दोनों के बीच में और फिर ये कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब इसके बाद ये जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव होते हैं, दीज आर द नॉन टेक्निकल गाइस, है ना, वो इतने प्रॉम्प्ट नहीं होते कि वो किसी लैपटॉप को रिपेयर करने की जानकारी रखें। तो ये क्या करते हैं, अब ये आगे इस केस को बढ़ाते हैं इंजीनियर्स की तरफ, सर्विस सेंटर्स की तरफ। मान के चलो देयर आर 3 सर्विस सेंटर्स, कौन से, हैदराबाद सर्विस ग्रुप, बैंगलोर एंड द मुंबई, दीज आर द 3 सर्विस। और ये जो पर्सन जिसने कॉल किया था वो ही बिलोंग्स टू हैदराबाद। तो बेस्ड ऑन दिस कस्टमर, ये कस्टमर कहाँ का था, बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द कस्टमर, ये केस कौन से सर्विस सेंटर को जानी चाहिए, दैट इज समथिंग व्हिच इज अगेन डिसाइडेड बाय द ओमनी चैनल। यहाँ पे फिर से ओमनी चैनल का, तो ओमनी चैनल का इंटरफेरेंस बहुत जगह मिलेगा, बहुत जगह मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूज क्या होती है, ये सब चीजें हैं, बहुत लंबा कंसेप्ट है, तो मैं उतना अंदर तक नहीं जाता कि आगे चल के फिर क्यूज को असाइन करना ये भी ओमनी चैनल वगैरह होता है, इतना अंदर तक नहीं जाता हूँ बिकॉज फिलहाल आपको उतना नॉलेज ही नहीं, ठीक है। तो मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया आपको कि ओमनी चैनल किस तरह का ऑटोमेशन टूल है और कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है। सो ओमनी चैनल इज एक्चुअली फीचर ऑफ सर्विस क्लाउड, और ये किस तरह से काम करता है ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया है। इसके ऊपर की थ्योरी आप निकालिए और अपने पास एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करिए इसका, और फिर आप जो है आगे देखना इसको क्या होता है, फिर इसके बारे में हम देखेंगे। ये एक फीचर था। इसके बाद में एक फीचर आता है कम्युनिटीज या फिर पार्टनर्स। यू कैन इवन क्रिएट योर ओन वेबसाइट
You can even create your own portal. ठीक है, you can create your own portal. So community is something creating of the portals. ठीक है, it is something called as experience cloud. अब इसका नाम बदल गया, ठीक है, इसका नाम बदल के एक्सपीरियंस क्लाउड हो चुका है। पहले दिस वाज अ फीचर ऑफ सर्विस क्लाउड, आज भी सर्विस क्लाउड का फीचर है, लेकिन अब ये बहुत बड़ा हो गया है। तो इसके लिए ना अब एक अलग ही समवन माइक इज ऑन, इसके लिए आज अभी एक अलग ही क्लाउड बन चुका है। ठीक है, इसके लिए अच्छा मैंने लिखा समवन माइक इज ऑन, प्लीज सुशांत, दिस इज योर माइक, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सो कम्युनिटी क्लाउड या एक्सपीरियंस क्लाउड एक बहुत बड़ा क्लाउड है। नाउ लेट मी टेल यू, अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे सेल्सफोर्स के इंटरव्यू में कि हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन कस्टमाइज्ड वेबसाइट, कस्टमाइज www. नहीं, customized website, how you can create your own pages, how you can create your own portals inside the Salesforce. The answer is community cloud. With the help of community cloud, with the help of experience cloud, you can create your own customized space. Let me show you that also. मैं देखिए, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देते चले जा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई एम गिविंग यू जस्ट एन आइडियाज। डिजिटल एक्सपीरियंस के अंदर रहता है all sites. Let me try to show you this. This is how inside your organization you can create your own community portal. और मैं recently अभी जिस पे काम कर रहा हूँ उस पे community में भी काम है थोड़ा सा। So अभी recently I have developed a portal. ये एक तरह का पोर्टल जैसा मैंने बनाया है। So मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको कि inside your Salesforce, inside your Salesforce you got this facility. See, these all are the templates. These all are the default templates. इनकी मदद से आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करके यू कैन बिल्ड अप योर ओन कम्युनिटी पोर्टल, यू कैन बिल्ड योर ओन कम्युनिटी वेबसाइट, यू कैन बिल्ड योर ओन पेजेस। सो अगर कोई आपसे पूछे कल्चर के सेल्सफोर्स कि आप सेल्सफोर्स में अपने कम्युनिटी पोर्टल कैसे बना सकते हैं, आंसर इज कम्युनिटी क्लाउड बोलिए या एक्सपीरियंस क्लाउड। ठीक है, अब इसमें कैसा है, ये थोड़ा सा एक अलग टॉपिक है, इसके अलग ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, बिकॉज ये सारे जितने भी टेम्पलेट्स है ना, इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर हम एम्बर को जाते हैं तो एम्बर में हमको अलग कंपोनेंट मिलता है, साइप्रेस में अलग मिलता है, स्टेला में अलग मिलता है, वेबस्टर में अलग, जेफसन में, सिटीजन्स में। सो ऑल दीज आर व्हाट, दीज ऑल आर द टेम्पलेट्स। इन टेम्पलेट्स के अंदर कंपोनेंट्स अलग अलग किस्म के होते हैं, तो एक्चुअली इसकी अलग ट्रेनिंग होती है। कम्युनिटी क्लाउड जैसा मैंने कहा ना, बहुत बड़ा क्लाउड है। कम्युनिटी पे काम करने से पहले कम्युनिटी की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और वो इस ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है। तो सेल्सफोर्स बहुत बड़ा है, सेल्सफोर्स बहुत बड़ा है। मैं बस आपको इंट्रोड्यूस करता चला जा रहा हूँ कि कितनी सारी चीजें हैं सेल्सफोर्स पर, और आपका पूरा यहाँ से आपकी जितनी भी जिंदगी बची है ना, वो पूरी आप घूमते फिरते ना सेल्सफोर्स में निकाल दो, आप इस बिल्डिंग के बाहर ही नहीं जा पाओगे। कोई दूसरी टेक्नोलॉजी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, सेल्सफोर्स इतना बड़ा। तो अगर कल्चर के कोई पूछे आपसे कि हाउ यू कैन क्रिएट दिस योर ओन वेबसाइट्स, योर ओन कस्टमाइज्ड वेबसाइट्स, कोई किसी भी तरह से ऐसा कुछ नाम आए, वेबसाइट, पोर्टल, पेजेस, तो द आंसर इज विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी क्लाउड या फिर विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस क्लाउड वी कैन क्रिएट योर ओन कम्युनिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। मे बी फॉर योर कस्टमर्स, मे बी फॉर योर पार्टनर्स, व्हाटएवर आप जिसके लिए भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। But then the next is, last is CTI. CTI stands for Computer Telephonic Interfaces. ये वही इंटरफेसेस हैं जो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं, तो वो जिस तरह से वो पूरा इंटरफेस बना हुआ है, प्रेस 1 फॉर दिस एंड 2 फॉर दैट, तो ये वही इंटरफेसेस है। तो इट्स अगेन अ फीचर ऑफ सर्विस क्लाउड। तो सर्विस क्लाउड बहुत बड़ा है, सर्विस क्लाउड में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं सर्विस क्लाउड में, और ये पूरी तरह से कोई नहीं सीख पाता क्योंकि ये वाकई में बहुत बड़ा है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन से प्रोजेक्ट पे हो और उसमें कितनी फंक्शनैलिटीज हैं सर्विस क्लाउड। ठीक है, तो सर्विस क्लाउड वाकई में बहुत बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लाउड इज मार्केटिंग क्लाउड। तो जैसा कि मैंने कहा कि व्हेन इनिशियली द सेल्सफोर्स वाज स्टार्टेड, सेल्सफोर्स वाज स्टार्टेड विद दीस टू क्लाउड्स, सेल्स क्लाउड एंड द सर्विस क्लाउड। बाद में आया मार्केटिंग क्लाउड। अब मार्केटिंग क्लाउड किस तरह से आया, देखिए, सेल्स क्लाउड और सर्विस क्लाउड को तो पूरी तरह से डेवलप किया सेल्सफोर्स, पूरी तरह से फ्रॉम द स्क्रैच इटसेल्फ, जीरो से स्टार्ट करके। एवरी फंक्शनैलिटी ऑफ दिस क्लाउड हैज बीन डेवलप्ड बाय द इंजीनियर्स फ्रॉम द सेल्सफोर्स। ठीक है, बट मार्केटिंग के साथ में उन्होंने ऐसा नहीं किया, थोड़ा सा एफर्ट कम किया। कैसे? मार्केटिंग वाज दैट फीचर जो कि सेल्सफोर्स के पास नहीं था, एंड सेल्सफोर्स समहाउ नो कि किसी भी सीआरएम की सबसे जो स्टार्टिंग होती है वो मार्केटिंग से होती है ना। एवरी सीआरएम, द साइकिल ऑफ द सीआरएम इटसेल्फ स्टार्ट फ्रॉम द मार्केटिंग। कोई भी बिजनेस की शुरुआत होती है मार्केटिंग से, बाद में जाके सेल्स और सर्विस की चीजें आती है।
तो अभी जो जो सीआरएम इन्होंने प्रपोज किया था उसमें सिर्फ दो ही चीजें हुआ करती थी, सेल्स और सर्विस। उसमें मार्केटिंग से रिलेटेड कोई चीज नहीं, एंड दे नो दिस रिक्वायरमेंट, दे अंडरस्टैंड दिस रिक्वायरमेंट। तो अब इन्होंने क्या किया कि यार दो हल है, एक तो ये कि हम नया बनाना शुरू करें, दूसरा क्या, दूसरा ऐसा था कि उस दौर में, उस जमाने में दो ऐसे एप्लीकेशन थे जो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे मार्केटिंग में। एक था मार्केट हुड, ये नाम है एप्लीकेशन, दूसरा था एग्जैक्ट टारगेट। दीज वे द टू एप्लीकेशन। जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा कि व्हाट्सएप को फेसबुक ने परचेस कर लिया है ना, तो नाउ द व्हाट्सएप इज अ प्रोडक्ट ऑफ फेसबुक, ऐसे कुछ, ऐसी कोई कहानी में आपको सुनाने का। तो एग्जैक्ट टारगेट नाम का एक प्रोडक्ट हुआ करता था उस दौर पे। एग्जैक्ट टारगेट वाज अ मार्केटिंग टूल, ठीक है। एग्जैक्ट टारगेट जो था वो मार्केटिंग टूल हुआ करता था, बट दैट वाज प्योरली एंड प्योरली ऑन प्रीमाइस टूल। मतलब इसको लेता अगर कोई इसको लाइसेंस परचेस करता तो उसे अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ता था और उसके बाद वो उसे यूज कर सकता था। सो एग्जैक्ट टारगेट वाज प्योरली एंड ऑन प्रीमाइस टूल, प्योरली एंड प्योरली ऑन प्रीमाइस टूल। सबसे पहले तो सेल्सफोर्स ने इसे टेक ओवर किया, सबसे पहले सेल्सफोर्स ने एग्जैक्ट टारगेट को खरीद लिया। खरीदने के बाद इसे कन्वर्ट किया फ्रॉम ऑन प्रीमाइस टू ऑन क्लाउड, पूरा का पूरा एप्लीकेशन क्लाउड पे लेके आया और उसका नाम बदल के, एग्जैक्ट टारगेट से उसका नाम बदल दिया मार्केटिंग क्लाउड, ठीक है। तो भाई इस तरह से मार्केटिंग क्लाउड एग्जिस्टेंस में आया है। मार्केटिंग क्लाउड पूरी तरह से नया डेवलप नहीं हुआ है, काफी सारी फंक्शनैलिटीज ऐड हुई है इसमें, ठीक है, काफी सारी फंक्शनैलिटीज ऐड हुई है मार्केटिंग क्लाउड में, लेकिन इसकी शुरुआत जीरो से नहीं हुई। Actually, there was a product called as Exact Target and Salesforce has purchased this. Salesforce ने इसको टेक ओवर कर लिया, खरीद लिया, और उसके बाद आया है मार्केटिंग क्लाउड। तो अब मार्केटिंग क्लाउड में कुछ फीचर्स हैं जैसे कि ईमेल स्टूडियो, मोबाइल स्टूडियो, एसएमएस, सोशल, जर्नी बिल्डर। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। थोड़ा वक्त लगेगा इसमें एक्सप्लेन करने में और ये समझना जरूरी है क्योंकि आपके एंटायर सेल्सफोर्स जर्नी में ये तीन क्लाउड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी आप रेज्यूमे में पुटअप करने वाले हो कि मैंने काम किया है सेल्स पे, सर्विस पे, मार्केटिंग पे, तो आप एक्सपेक्ट करो कि क्वेश्चन इसी पे आएंगे, है ना। तो जब क्वेश्चन आने ही वाले हैं तो फिर मुझे एक्सप्लेन करने तो अच्छे से एक्सप्लेन करना, ताकि जितना मैं बताऊंगा उतना आप बता पाओ। तो चलिए, मार्केटिंग क्लाउड्स में कौन कौन से फीचर्स आते हैं। सबसे पहला है ईमेल स्टोर, ठीक है। आप एक बात बताइए, जब भी आप किसी को न्यू ईमेल करते हैं जीमेल पे, ठीक है, जब भी आप किसी को जीमेल करते हो, सो एड्रेसेस डालने के तीन तरीके होते हैं, टू, सीसीसी और बीसीसी, ठीक है। आप टू में कितने, एक ईमेल, मतलब अगर मुझे एक ईमेल भेजना है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, मैं कितने लोगों को भेज सकता हूँ एट अ टाइम विद द जीमेल। टू में कितने एड्रेसेस रख सकता हूँ, सीसी में कितने, बीसीसी में कितने, एट मैक्स में कितने एड्रेसेस रख सकता हूँ। एनी गेसिंग्स रिलेटेड, कोई जानता है इस चीज को? किसी को पता है कि जीमेल यूज करके आप एट मैक्स एक ईमेल को कितने लोगों को भेज सकते हैं? गूगल कर लो यार, गूगल कर लो साइड बाय साइड। कौन सी बड़ी चीज है, गूगल के बिना तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिंदा नहीं रह सकता। कोई आंसर गूगल करने के बाद किसी को कुछ मिला क्या? चलिए मैं बताऊं। यस, हम बीसीसी में 3 लोग रह सकते हैं। 3 लोग, बस 3 लोग? नहीं नहीं, कुछ तो मे गलत। बी सर। नहीं, अच्छा मे भी, मैं समझा गूगल करके निकाला। नहीं नहीं, एक्चुअली सीसी में 50, टू में 50 और बीसीसी में 50। मतलब आप एक ईमेल को एट अ टाइम आप सिर्फ 150 लोगों को भेज सकते हैं, ठीक है। अब आप कोई चीज की कैंपेनिंग कर रहे हो, कैंपेनिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको कोई ईमेल है इसको हजारों लोगों को भेजना है, हजारों से भी ज्यादा। इफ यू वांट टू सेंड इट टू द मिलियंस ऑफ द पीपल, तो आप क्या करोगे? आप क्या इस तरह से 150 Sir, में your डिवाइड? voice is not audible. ओके ओके ओके, this all happens to my network, yeah. Now let me tell okay, whether I am audible or not. Please acknowledge. हाँ या ना? Sir, your voice is breaking. Kasim sir. Yes, getting it.
Now please acknowledge me for this voice. Whether I'm audible or not, please acknowledge. Guys, please acknowledge me whether I'm audible or not. Now audible, sir. ठीक है, चलो चलो फिर मैं वापस से रिपीट करता हूं मैं कहां पर था। ठीक है, सो हम बात कर रहे थे इस चीज पे कि ईमेल स्टूडियो का एग्जैक्ट रोल क्या है। देखिए, अगर हम कोई ईमेल एक साथ कई लोगों को भेजना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू शूट द ईमेल टू मिलियंस ऑफ द पीपल, तो आप जीमेल नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो अगर आप कोई मार्केटिंग कर रहे हैं और आपको भी काफी सारे ईमेल्स आते होंगे, देखो ये सारे भरे पड़े हैं मतलब ईमेल, दिस ऑल आर द मार्केटिंग सॉर्ट ऑफ ईमेल्स। हर दिन आपको ऐसे हजारों ईमेल आते हैं। तो अगर आप एक ही बार में किसी एक ईमेल को काफी सारे लोगों को भेजना चाहते हैं, तो जीमेल इज नॉट द ऑप्शन। तो इसके लिए सेल्सफोर्स के पास अपना एक क्लाउड है जिसको हम बोलते हैं मार्केटिंग क्लाउड, और मार्केटिंग क्लाउड का एक फीचर है कॉल्ड एज ईमेल स्टूडियो। Now this email studio actually facilitates you can send one email in a single snapshot. You can send it to up to 1 million people. 1 मिलियन लोगों को एक ही बार में आप भेज सकते हो। ठीक है, एक ही बार में। तो ये है ईमेल स्टूडियो की फंक्शनैलिटी। तो अगर आप इस तरह का कुछ मार्केटिंग पर्पस है आपका, देन यू कैन गो विद द सेल्सफोर्स एंड टेल देम एंड दे कैन प्रोवाइड यू द मार्केटिंग क्लाउड। मार्केटिंग क्लाउड के फीचर्स आप मिल सकते हैं। दूसरा है मोबाइल स्टूडियोज। मोबाइल स्टूडियो प्रिसाइसली यूज फॉर जो अपने को टेली मार्केटिंग के कॉल्स आते हैं, जो अपन रिसीव करते हैं और फिर कट कर देते हैं, बिकॉज हमको सामने वाला क्या आपको सुनाई देता था ये रिकॉर्डेड कॉल है। तो अगर इस तरह के रिकॉर्डेड कॉल्स आपको करने हैं तो उसका सोल्यूशन है मोबाइल स्टूडियो। एसएमएस के जरिए काफी पहले मार्केटिंग हुआ करती थी, आजकल तो कोई ध्यान नहीं देता इस चीज को, बट जब ये आया था मतलब हमारे दौर की बात है यार। एसएमएस पैक डलवाए जाते थे मोबाइल्स पे और एसएमएस काफी बड़ा जरिया हुआ करता था कम्युनिकेशन का एक जमाने में। तो आज ये फीचर आउटडेटेड है हालांकि, लेकिन हाँ सेल्सफोर्स में ये भी फीचर है कि आप बल्क ऑफ एसएमएस जो है एक ही बार में आप शूट कर सकते हैं। उसके बाद में जो नई चीजें हैं वो है सोशल स्टूडियो और द जर्नी बिल्डर। ठीक है, सोशल स्टूडियोज एंड द जर्नी बिल्डर्स, दीज आर फ्यू न्यू फीचर्स, दीज आर फ्यू न्यू फीचर्स। ठीक है, अब ये क्या है, सोशल स्टूडियो ये आपके आइंस्टीन के साथ भी काम करता है। आइंस्टीन के साथ मिलके मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि देखिए अक्सर ऐसा होता है आपके साथ कि अगर आप आपके मोबाइल पे आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन ऐसी कोई वेबसाइट, ऐसा कोई एप्लीकेशन पे अगर आप किसी प्रोडक्ट को सर्च करें, सिर्फ सर्च करें, थोड़ा सा समय बिताएं उसके ऊपर, उसके फीचर्स को कुछ देख लें, और नेक्स्ट टाइम अब वो ऐप तो आपने बंद कर दिया, लेकिन अब जब आप फेसबुक पे जाते हैं तो आपको वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट वहां पे भी एडवर्टाइज होकर नजर आता है। किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या? पहले तो हाँ या ना में बताओ, क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई प्रोडक्ट कहीं और देखा था और आपको फेसबुक पे वो नजर आता है? दिस इज कॉल्ड एज फेसबुक मार्केटिंग। हुआ है? Yes, sir. हाँ हुआ है, मेरे ख्याल सभी के साथ होता है कभी ना कभी तो हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए फेसबुक एक अलग वेबसाइट है और आपका फ्लिपकार्ट एक अलग वेबसाइट है। ठीक है, लेकिन ये सब चक्कर क्या है? तो ये चक्कर एक्चुअली ऐसा है कि आपका सोशल बिहेवियर क्या है उसको ट्रैक कर रहा है कोई ना कोई। ठीक है, and they are tracking your social behavior ki on which particular website you spent how much of the time on which product, how much of the things what you have done, आपके क्लिक्स कहाँ कहाँ पर थे, आपने कहाँ पे क्लिक किया, क्या ओपन किया, क्या देखा, these all things are going to be tracked, and based on that एक ऑटोमेशन टूल है इसमें, यहाँ पे हमारा सेल्सफोर्स साइंस टीम भी काम करता है। इट्स इंटेलिजेंट टूल, इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और वो डिसाइड करता है कि अगर ये प्रोडक्ट इन्होंने मे बी 20 to 30 सेकंड देखा है, अगर हम ये प्रोडक्ट इनको बार बार अलग अलग जगहों पे पिच करें, सो दिस कुड बी पॉसिबल कि ये बंदा उसको खरीद ले। ठीक है, या बेस्ड ऑन योर काइंड ऑफ इंटरेस्ट, आप जिस तरह की सर्फिंग करते हो, आपको उस तरह की फेसबुक पे उस तरह के आपको पोस्ट आते हैं या उस तरह के, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सोशल बिहेवियर। तो इस तरह की जो चीजें ट्रैक करना, इसके लिए सोशल स्टूडियोज यूज होता है, इसके लिए आइंस्टीन यूज होता है। और जर्नी बिल्डर बहुत नई चीज है, जर्नी बिल्डर एकदम ही नई चीज है। लेट मी टेल यू अबाउट दिस, ये इतना नया है कि इंडिया में अभी तक आया ही नहीं है। और अगर आप अपने इंटरव्यू में इसके डिस्कनेक्ट होना, नेटवर्क्स के बड़े इशू हैं मेरे भाई, या प्लीज मेक मी होस्ट वन सेकेंड, और प्लीज ट्रांसफर द होस्ट कमांड, थैंक यू। ओके, सो जर्नी बिल्डर इतना नया है कि बहुत सी इंडिया में अभी तक आया ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप अपने इंटरव्यू में जर्नी बिल्डर के बारे में बता पाए तो बहुत सामने वाला बड़ा गजब का इंप्रेशन क्रिएट होगा आपका।
So what is the journey builder? Let me tell you this. What exactly is the journey builder? Let me tell you this. देखिए journey builder क्या है? यूएस में नॉर्मली यूएस में ये चल रहा है, काफी चल रहा है। अगर आप बैंक लोन के लिए जाते हो, मतलब इंडिया में क्या प्रोसेस है कि अगर आप बैंक लोन के लिए जाते हो तो फिर आपको काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं। जो भी बैंक का पर्टिकुलर नॉर्म्स है। अगर आप नेशनलाइज में जाते हो तो फिर ये आपकी जो जर्नी है बहुत लंबी हो जाती है, 2 से 3 महीना आप बस बैंक के चक्कर मारते रहते हो। प्राइवेट वाले आपको मिनिमम डॉक्यूमेंट्स में दे तो देते हैं, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमारा बैंकिंग सिस्टम है। अब यूएस में कैसा होता है कि अगर आप कोई लोन के लिए जाते हो तो आपका वो जो केस है, आपकी वो जो फाइल है आपसे ली जाती है, मतलब ठीक है आपने अप्लाई कर दिया, बस दैट्स इट, यू नो। एक छोटा सा यूजर इंटरफेस फॉर्म होता है, जरा सा। इट विल आस्क यू द ओनली फ्यू डिटेल्स, जिसमें शायद आपका नाम और सबसे इंपॉर्टेंटली आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर, जैसे आधार कार्ड होता है यहाँ पे, वैसे सोशल एसएसएन नंबर बोलते हैं इसको। तो आपका एसएसएन डिमांड करता है, बस एक 2-3 डिटेल्स के साथ में आपका एक फॉर्म सबमिट हो जाता है। इसके बाद में जर्नी बिल्डर नाम का अपना एक प्रोसेस है जिसको ये सारी डिटेल्स आपकी दे दी जाती है। नाउ दिस जर्नी बिल्डर एक्चुअली हेल्प्स बैंक्स को ये डिसाइड करने के लिए कि ये बंदा कैसा है, इस बंदे का प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, इसके ऊपर एग्जिस्टिंग लोन्स कैसे थे, किस फ्रीक्वेंसी में उसने लोन क्लियर किया है ना, वेदर दिस पर्सन इज लायबल फॉर एनी अदर लोन्स और नॉट, इस पर कुछ एग्जिस्टिंग क्या चल रहा है कोई। अच्छा, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें अगर आप चाहें तो फिर अगर ये अगर डिफेंस सर्विस से जुड़ा हुआ है तो फिर उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वगैरह भी ट्रैक कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप जर्नी बिल्डर को किस हद तक एक्सपांड करना चाहते हो। तो जर्नी बिल्डर बेसिकली एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम किसी पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं, और उस पर हम डिपेंड करता है कि उस पर्सन को उसके आगे की उसको लोन देना या ना देना, देना तो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना, कितने सालों के लिए देना, ठीक है, या फिर उस पर्सन की केस को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना, ये सब चीजें। तो एक पोर्टफोलियो डिजाइन करना है किसी पर्सन का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, दैट टाइम जर्नी बिल्डर इज अ काइंड ऑफ ऑटोमेशन। तो ये बहुत नया है, ये बहुत ही नया है, और ये इतना नया है कि ये बस 2 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ है और लोगों ने तो जस्ट अभी काम करना शुरू किया। अगर ये आप बोल पाए ना मार्केटिंग क्लाउड में, अगर आप बोल पाए जर्नी बिल्डर, तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा। तो इसलिए मैं ये चीजें आपके इस ट्रेनिंग में डाल दिया ताकि आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता रहे, ठीक है। एक मिनट, ये आज लूँ या कल? ये मैं कल ही लूंगा, बस ये मुझे एक ही बार में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। Collaboration और ठीक है, ठीक है। यहाँ से मैं कल से लेता हूँ, आज मैं यही स्टॉप करता हूँ। लेकिन आपकी असाइनमेंट है ओमनी चैनल्स। ओमनी चैनल क्या है इसके बारे में जितना हो सके जानिए, गूगल करिए, अपना एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करिए, और जितने पॉइंट वाइज बनाइए, ज्यादा बड़ी थ्योरी मत बनाया करो, 2-4 अच्छे पॉइंट्स निकालो। इसका क्या रोल होता है वो मैंने दिखाने की आपको कोशिश करी थोड़ी बहुत यहाँ से, ठीक है। इस एग्जाम्पल को रिलेट करते हुए कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल ऐसा ही कुछ मैंने गूगल में देखा था एक बार। तो इस तरह का कुछ एक डॉक्यूमेंट निकालिए ओमनी चैनल पे और फिर देखते हैं क्या करना, ठीक है। टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप इट राइट नाउ। पहले मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप करने दीजिए, फिर मैं क्यूएस लेता हूँ।